हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका के कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे सिम्टम्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम यहाँ दिए रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स ये कौन से ड्रग है, और इसके कुछ भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम या कोई स्पेसिफिक सिम्टम पूछे जा सकते हैं। लाइक बोल देगा कि ये ड्रग आइडेंटिफाई करो और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन को लिखो, इसके थर्स्ट को लिखो, इसकी स्किन का सिम्टम को लिखो, स्किन कैसा होता है। या फिर यहाँ पर बोल दे सकता है इसका मॉडलिटीज़ को लिखो, या मॉडलिटीज़ मतलब तो आपको पता ही होगा कि एग्रेवेशन एंड एमोलिएशन, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। तो आज हम लोग 10 ऐसे सिम्टम्स लेने वाले हैं मेटेरिया मेडिका के बारे में, जो कि सेकेंड BHMS सिलेबस से है, और इसमें सिम्टम के साथ साथ देखेंगे क्या है। फर्स्ट, थाइसिस आफ्टर मैकेनिकल इंजरीज टू चेस्ट। Identify the medicine, write down one characteristics of it. Thisis after mechanical injury. Mechanical injury after chest, that is the ruta G, ruta graveolens. And next is musical is unbearable, make her sad. Name the drug and describe its thirst. Music is unbearable and make her sad. This is the aconitum napellus. Aconite, yes, aconitum napellus is the drug name. Next is secretion from all the mucous membrane are thick and bland and yellowish green. Thick and bland, and yellowish green is a characteristic symptom of pulsatilla. Okay, and one thing that the thirst of aconitum napellus. Aconitum napellus is the great burning thirst for the cold water. Okay, burning thirst for the cold water. Actually, it is the characteristic symptom of thirst of aconitum napellus. Next is secretion from all the mucous membrane are thick and bland and yellowish green. So this is the pulsatilla, and its characteristics of pain is like very tearing like pain, and the pain is rapidly shifting from one part to another part. This is the characteristic symptom of pain of pulsatilla patient. Every mental excitement decrease or increase the cough, means here any mental excitement that will decrease or increase the cough. The medicine is spongia. Yes, this is the spongia medicines, spongia tosta. Next, a patient living or working in a damp cold basement or milk dairy. Patient living or working in a damp cold basement or milk dairy, this is the Dulcamara. Okay, next, oozing of bloody fluid from navel of infants. Oozing of bloody fluid from the navel of infant, this is the Calcarea fos. Okay, Calcarea fos. Great thirst with dry tongue, mouth and throat. The mouth of the patient is very dry, throat and tongue also are the dry, and the patient is very thirst. The medicine is Rustox. So Rustox, the characteristics of peculiar symptom of Rustox is a great thirst with dry tongue, mouth and throat. Next, number H, time passes slowly. The time is passes slowly. Argentum nitricum. Patients often think that time passes very slowly, and they have so much time. They actually do all things in very hurry. Okay. Next, I, constantly digging and boring of the nose. This is the Sina patient. Sina patients are very constantly digging and boring at the nose. Okay. Next, hemorrhage into anterior chamber after iridectomy. After iridectomy, the hemorrhage found in the interior chamber of the heart. Okay, this medicine is the Ledempal. Okay, Ledempal. Now we will shift to the next part of this question. That is the first part of this question is the to identify the medicines from the characteristics symptom given, and second question is name one characteristics symptom of it, or about the thirst or characteristics of pain. So going to the second part of the questions. So there is a first questions. Answer of the first question is, this is what you see, ruta G. Okay,
So Ruta ji, the eyes burns, edges feel stained hot like ball of fire. Spasm of lower lid. It is a characteristic symptom of Ruta ji. Okay. Next question. Aconite. The thirst was asked. Thirst, burning thirst for large quantity of cold water. Burning thirst for large quantity of what? Cold water, not hot water, not only water. It's a cold water and large quantity. Next, one characteristic symptom, if asked in the question, if it will asked in the question, then you can write convulsion in teething children. What? Convulsion in teething children. But in case of Aethusa cynapium, there will be indigestion in teething children. What? Indigestion in teething children. But in case of Aconite napellus, Aconitum napellus, it is a convulsion in teething children. Next, pulsatilla. The pain were asked. Okay, actually the secretion, in the question there was given about the secretion is of thick bland and of yellowish greenish in color. So pain were asked. Pain is a type of drawing and tearing. Drawing means drawing, and tearing means something tear like pain. So drawing, tearing, erratic, rapidly shifting from one part to another. This is the very characteristic symptom of only and one pulsatilla, that is rapidly shifting from one part to another. Means a patient saying my I have pain in my I was having pain in my right knee, and after few minutes and after few hours he will complain that I have pain, or he or she will complain that his left knee is paining. So this is the characteristic symptom of pulsatilla, where you can see the drawing and tearing type of pain which is rapidly shifting from one part to another part. Next, spongia. Okay, spongia, there is a characteristic symptom, that is a sore throat. There is a sore throat, and when it is what, it is increases during after eating sweet things. Means it is a type of aggravation, and when sore throat is increasing or aggravated when the patient consuming some sweet things. After eating that, the sore throat problem will be aroused. Now, dull camera means people living in the shady place, means ceiling. So Dulcamara, there is a skin were asked. The skin is delicate, sensitive to cold, liable to eruption, especially urticaria. Means the patient having the skin very delicate, means very sensitive. And sensitive to what? Sensitive to cold. Means the patient's skin is very delicate, sensitive to cold. And next, liable to eruption, especially urticaria. Means very prone to eruption. If any things come to her or his skin, then there will be reaction and eruption can be seen. Especially it's a type of urticaria, that is painless rashes can be seen on the skin, or eruption can be seen in the skin. Rashes before menses. Before menses, the patient can feel the rashes in case of female. Urticaria whole over the body, but there is no fever. Itching burns after snatching. If patient trying to scratch the itching area, there will be burning sensation, but there is no fever. All over the body urticaria can be found. And characteristic symptom, it is increases the warm, mean aggravated by warm, but it is relieved or ameliorated by cold application. ओके, तो डलकामारा के बारे में बात करें. डलकामारा क्या था? आपका सीलिंग में रहता है. सीलिंग मतलब जो डैम्प एरिया, सीलिंग एरिया में रहता है. तो इसका जो है स्किन जो है बहुत ज़्यादा डेलिकेट. एक तो डलकामारा जो होता है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना. लेकिन कोल्ड से प्रॉब्लम मतलब इनको अगर सीजनल चेंज अगर होता है तो क्या होगा, उन लोगों को प्रॉब्लम होता है. मतलब इन लोगों को सर्दी, कोल्ड बहुत जल्दी, दे आर वेरी प्रोन टू कॉमन कोल्ड. सो ये देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट को. अब क्या होता है, उनका जो स्किन होता है ना बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है. और इसके अलावा अगर हम लोग देखें, जो इसका स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है. सेंसिटिव टू व्हाट? सेंसिटिव टू कोल्ड होता है. और इजीली क्या होता है, इसमें इरेप्शन देखने को मिलता है. और वो इरेप्शन क्या हो सकते हैं? वो इरेप्शन जो होता है मेनली अर्टिकेरिया होता है, जो कि
होल ओवर द बॉडी ये देखने को मिलता है, और जो कि एग्रेवेटेड हो जाता है बाय द हीट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन मीन्स गर्म में वो एग्रेवेट हो जाता है, जबकि ये ठंडा में क्या होता है, एमोलिरिएट होता है। और इसमें और एक चीज़ है, जो रैश होता है ये मेंसेस से पहले, बिफोर मेंसेस ये देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट कैलकेरिया फॉस। सो कैलकेरिया फॉस में क्या था, उसके जो बच्चे के जो अम्बिलिकस वाले पोर्शन था, वहाँ से क्या है, ब्लीडिंग हो रहा था, ओजिंग हो रहा था, ब्लीडिंग नहीं। तो यहाँ पर कैलकेरिया फॉस प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। अब जो इसमें जो दिया गया कि एट एवरी अटेम्प्ट टू ईट कोलिक पेन्स इन एब्डोमेन, मतलब वो जब भी कुछ खाना चाहे तो उनका जो पेन क्या होता है, एब्डोमेन में पेन शुरू हो जाता है। जो एक पेशेंट है वो आया और उसने बताया कि हाँ मेरे मैं जब भी कुछ खाता हूँ तो मेरे पेट में जो है दर्द शुरू हो जाता है। तो इसमें ये नहीं बताया गया कि हाँ उसको डायरिया होता है या उसको अकड़न जो होता है वो मतलब कि आफ्टर इरुक्टेशन या फिर आफ्टर फार्ट या फिर आफ्टर स्टूल जो है उनको रिलीफ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो खाने के बाद ही उनको क्या होता है, कोलिक पेन शुरू हो जाते हैं उनके एब्डोमेन में। और साथ ही साथ इनके जो पेशेंट होते हैं, जैसे कि कोई स्कूल गोइंग गर्ल है, ठीक है ना, उनमें हेडेक देखने को मिलता है, हेडेक देखने को उनमें मिलता है। इसके अलावा फील कंप्लेन मोर देन थिंकिंग अबाउट देम। अब क्या होता है कि क्या होता है कि कुछ लोगों के बारे में ना वो मतलब उनके बारे में सोच के उनका मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम फील करते हैं। फ्रंटल और सेचर जो होता है ना, ये बहुत लंबे समय तक खुले होते हैं, मतलब ये जॉइंट जो फ्यूज़ नहीं हुआ होता है ये बहुत लंबे समय तक क्या होता है, ये ओपन होते हैं। तो ये कैलकेरिया फॉस में देखने को मिलता है। और लास्ट वन है चिल्ड्रन एमेसिएटेड अनेबल टू स्टैंड स्लो इन लर्निंग टू वॉक। मतलब इनके जो बच्चे होते हैं इतने ज़्यादा वीक होते हैं, एमेसिएटेड होते हैं बहुत जल्दी, और साथ ही साथ ये बहुत ही स्लो लर्निंग होते हैं चलने में। मतलब अगर मान लेते हैं कि एक बच्चा जो है एमेसिएटेड हो जाता है, वीक रहता है, तो उनको तो खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, और चल तो वो चलने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। चलने मतलब क्या, उनको चलने का जो सीखना होता है वो सीख नहीं पाते जल्दी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो स्लो इन लर्निंग टू वॉक। तो कैलकेरिया फॉस में मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले तो इसका जो क्वेश्चन था वो मैं बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन था ओजिंग हो रहा था, जो अम्बिलिकस रीजन में है वहाँ से क्या होता था, ओजिंग हो रहा था। तो ओजिंग ऑफ ब्लडी फ्लूइड, मतलब पूरा एक्चुअली ब्लड नहीं, ब्लडी का जो फ्लूइड होता है वो उसके नेवल, इन्फेंट के नेवल से निकल रहा था एक बच्चे के। तो जनरली मैंने क्या क्या बताया कि जब भी वो कुछ खाते हैं उनको क्या होता है, कॉलिक पेन हो जाता है, उनके एब्डोमेन में कॉलिक पेन होता है। हेडेक जो होते हैं स्कूल गोइंग गर्ल्स में हेडेक देखने को मिलता है। और साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, ये फील कंप्लेन, मतलब वो दूसरे लोगों के बारे में सोच करके बहुत कंप्लेन फील करते हैं। उनका जो फ्रंटल और सचर जो होता है ना, वो मतलब बहुत जल्दी नहीं फ्यूज़ होते या बंद नहीं होते, वो बहुत लंबे समय तक क्या होता है, खुला होता है। और साथ ही साथ चिल्ड्रन जो है इमासिएटेड होते हैं, उनको स्टैंड अनेबल टू स्टैंड होते हैं, खड़ा होने में दिक्कत होता है। और वेरी स्लो टू लर्निंग, वेरी स्लो इन लर्निंग होता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि आपका है ग्रेट थर्स्ट एंड ड्राई टंग, माउथ एंड थ्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जो एक पेशेंट आया है उसका जो है मतलब टंग जो है वो सूखा है, उसका जो जनरली देखा जाए तो उसका लीप, टंग, थ्रोट, ठीक है ना, ये सारा चीज़ सूखा हुआ है, माउथ सूखा हुआ है, ठीक है। और उसको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगा हुआ है। एक ऐसा है पेशेंट, मतलब एक ऐसा पेशेंट या एक ऐसा मेडिसिन भी है जिसमें क्या होता है कि ये सब सूखने के बावजूद भी उसको प्यास नहीं लगता। वो कौन सा है, तो याद रखना है, पल्सटीला है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपका वो सब कुछ सूखा हुआ और बहुत ज़्यादा उसको प्यास भी है। तो क्या है, उसका टंग के बारे में बताने बोला है। तो जनरली याद रखना है कि टंग जो उसका है ड्राई होता है, सोर होता है, रेड होता है, क्रैक्ड होता है, ट्रायंगुलर रेड टिप्ड होता है, टेक इम्प्रिंट ऑफ टीथ। याद रहेगा, ये बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है टंग का। क्या मैंने बताया पहले, सूखा रहेगा, क्योंकि मुंह सूखा है तो क्या होगा, इसका जीभ भी सूखा होगा। जब ये ड्राई होगा तो इसमें सोर होगा, सोर मतलब इसको छूने से दर्द होगा। अब दर्द होगा तो रेड होगा, ठीक है। तो पेनफुल है, मतलब वो ड्राई है, सूखा हुआ है, सोर है, फूला हुआ है, सोर है, रेड है। और उसके बाद क्या है, क्रैक है। क्या क्रैक मतलब उसमें क्रैक देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर रेड टिप है, और टेक इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ, ठीक है, टेक इम्प्रिंट ऑफ टीथ। तो एक बार फिर से बिना देखे कोशिश करना है कि टंग जो होता है वो क्या होगा, वो ड्राई होगा, सोर होगा, और उसके बाद रेड होगा, और इसके बाद क्या होगा, रेड ट्रायंगुलर ट्रिप होगा,
ठीक है। करेक्ट मैंने बताया ना, ट्रायंगुलर रेड टिप होगा और टेक इम्प्रिंट ऑफ क्या, टीथ, टीथ का इम्प्रिंट मतलब टीथ का जो है वो दाग इसमें बैठ जाएगा। सेकेंड नंबर है इसमें ग्रेट रेस्टलेसनेस को देखने को मिलेगा। ग्रेट रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन, कैन नॉट रिमेन इन बेड, मच चेंज इन पोजीशन ऑफन टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन। मतलब ये पेशेंट जो है इतना ज़्यादा रेस्टलेसनेस होते हैं, इतना ज़्यादा रेस्टलेसनेस होते हैं, इनमें बहुत सारा एंग्जाइटी रहता है, मतलब ग्रेट रेस्टलेसनेस विथ एंग्जाइटी और एप्रीहेंशन, कैन नॉट रिमेन इन बेड, मतलब इतना ज़्यादा उन लोग का एंग्जाइटी और ये होता है, मतलब कि रेस्टलेसनेस होता है कि वो बेड में क्या है, रह ही नहीं सकते, उनको हमेशा जगह चेंज करना होता है। सो चेंज पोजीशन ऑफन टू ऑपन रिलीफ फ्रॉम पेन, मतलब ये कब देखने को मिला, पेन के समय में। पेन में वो रेस्टलेसनेस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एंग्जाइटी होता है और वो अपना जगह चेंज कर रहे होते हैं, क्या करने के लिए, पेन से रिलीफ पाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट वन जो है वर्टाइगो व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग। जब ये खड़े होते हैं, जब ये चलते हैं तब इनको वर्टाइगो होता है, और जब ये लेट जाते हैं तो इनका जो वर्टाइगो और ज़्यादा बुरा हो जाता है, वर्सन और ज़्यादा बुरा हो जाता है जब वो लेट जाते हैं। तो इस चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से रस्टॉक्स को रिवीजन कर लेते हैं। इसका टंग कैसा था, तो टंग जो है इसका ड्राई था, सोर था, रेड था, क्रैक था, विथ राइट ट्रायंगुलर टिप था, और लास्ट में क्या था, इसमें ठीक इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ था। इतना याद रखना है। अब ये जो इनके जो पेशेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस होते हैं, एग्जाइटी में कुट कुट के भरा होता है, इसीलिए दे चेंज देयर पोजीशन टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, ठीक है, टू ऑब्टेन और रिलीफ फ्रॉम पेन। और इनमें वर्टाइगो होता है। वर्टाइगो कब होता है, जब ये चलते हैं या फिर जब वो खड़े होते हैं तब वर्टाइगो होता है। लेकिन ये और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है, एग्रेवेटेड हो जाता है जब वो क्या करते हैं, लाइंग डाउन, जब वो लेट जाते हैं तब ये और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। टाइम पासेस स्लोली, इनके लिए टाइम जो है बहुत ज़्यादा स्लोली बीतता है। तो ये तो अर्जेंटिम नाइट्रिकम था जैसे कि मैंने बताया। अब ये इनका जो एक प्रॉब्लम है, जो टाइम जो बहुत जल्दी जल्दी पास होता है, तो इसका जो मेन कारण है वो ये है कि ये जो है, ये जो पेशेंट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सारा चीज़ जल्दी जल्दी हरीली करना चाहते हैं। अब कोई आदमी अगर जल्दी जल्दी काम करके बैठ जाए तो क्या होगा, उनको टाइम ही टाइम रहेगा, फ्री टाइम। अब उनको लगेगा कि हाँ टाइम जो है उनके लिए जा ही नहीं रहा है, टाइम जो है पास नहीं हो रहा है, और बोलते हैं टाइम पासेस स्लोली, तो उनको ऐसा लगता है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट ऐसा होते हैं। अब इनका जो कुछ जीआईटी प्रॉब्लम होता है, जीआईटी सिम्टम के बारे में बात करते हैं। इसमें फ्लैटुलेंस देखने को मिलेगा, डिस्पेप्सिया देखने को मिलेगा, ठीक है, फ्लैटुलेंस डिस्पेप्सिया देखने को मिलेगा। और प्रत्येक खाना, बिल्चिंग आफ्टर एवरी मील, बिल्चिंग मतलब ढकार, क्या होता है कि हर खाना के बाद इनको क्या है, ढकार आना है। और स्टोमक ऐसे ही वुड बस्ट विथ वून, मतलब इनका पेट ऐसा भर जाता है गैस से जैसे कि ये बस्ट कर जाएगा हवा से, मतलब ऐसा इतना टाइट हो जाता है, इतना हेवी हो जाता है कि इनको लगता है कि ये जो है बस्ट ही कर जाएगा। और बिल्चिंग डिफ़िकल्ट, फाइनली ईयर रसेस आउट विद ग्रेट वायलेंट। और क्या होता है कि बिल्चिंग तो इनका ढिकार तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, बाद में। और लास्ट में क्या है कि जब अगर हवा आए तो उनकी ग्रेट वायलेंस के साथ बहुत ज़ोर से डकार आता है, ऐसा इन लोगों में देखने को मिलता है। क्लियर है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का मैंने क्या बताया कि इसका टाइम जो है बहुत ही स्लो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरीले काम करते हैं। इनका फ्लैटुलेंस वाला प्रॉब्लम है, हर खाने के बाद इनको बेल्चिंग करने की आदत है। और इनका जो पेट इतना ज़्यादा फूल जाता है, इतना ज़्यादा फूल जाता है कि ऐसा लगता है कि स्टोमक एज इफ़ इट वुड बस्ट विथ विंड, मतलब स्टोमक ऐसा लगता है कि वो हवा से बस्ट हो जाएगा। और बेल्चिंग जो होता है इनको करने में डिफ़िकल्टी होती है। लास्ट में जब बेल्चिंग आता है तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल के साथ, ग्रेट वायलेंस के साथ आता है। कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीना के बारे में। तो सीना का सिम्टम देखते हैं क्या है। सीना का सिम्टम दिया गया था, तो सीना में बताया गया था कि कॉन्स्टेंटली डिगिंग एंड बोरिंग एट द नोज़, मतलब उनका एक आदत रहता है कि हमेशा जो है नाक में वो लोग बोरिंग करते रहते हैं, भले ही खून निकल जाए बोरिंग करना है उन लोग को। तो नाक में कोई हाथ दे करके घुमाते रहते हैं, ऐसा होता है ना कुछ पेशेंट्स। तो ऐसे पेशेंट को देखने मिलते हैं कि कॉन्स्टेंटली बोरिंग एट नोज़, ठीक है ना। ये कौन सा है, सीना है। इनके क्रेविंग के बारे में बताया पूछा है, तो क्रेविंग जो है ये क्या खाना पसंद करते हैं। याद रखना कि इनको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सीना एक बच्चे के लिए है मेनली, तो बच्चे को क्या खाना होता है,
सी फॉर सीना, सी फॉर चाइल्ड, चाइल्ड को खाना है स्वीट, तो इनको मीठा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कैनाइन हंगर इन लोगों में देखने को मिलता है, इनका हैंगर जो है बहुत ज़्यादा कैनाइन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही भूखे होते हैं। और खुद मतलब कुछ खाना के बाद ही तुरंत उनको भूख लग जाता है, मतलब खाए नहीं कि ख़त्म नहीं किया कि दूसरा भूख उनको लग गया, तो ये क्रेविंग होता है। तो क्या मैंने बताया, क्रेविंग इसमें जो है मीठा खाने का क्रेविंग होता है, और इनको बहुत ज़्यादा ही हंगर होता है, इतना हंगर होता है कि उन लोग को खाने के बाद ही क्या है, भूख लग जाता है। नेक्स्ट है लीडम पाल। लीडम पाल के बारे में मैंने बताया था कि लीडम पाल में क्या है, कुछ हेमरेज के बारे में बताया था कि इरिडेक्टमी के बाद में एंटीरियर चैम्बर जो हार्ट का है उसमें क्या आता है, हेमरेज होता है। तो लीडम पाल जो है इसमें रिमेटिक पेन के एमोलरिएशन के बारे में पूछा गया था। तो इस जो एमोलरिएशन के बारे में है कि ये जब कोई अपना पैर को ठंडे पानी में रखता है तो उनको फील होता है ठंडा और अच्छा महसूस होता है। तो ये हो गया हमारा लीडम पाल का रिमेटिक पेन के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। अगर ऐसा सीरीज़ आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं इसी सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चंस के साथ साथ।